Good morning, student. Today, under directing part 3, we will discuss communication, its element, its barrier, and ways and means to effective communication. First, meaning of communication. Communication is the transfer of information from the sender to the receiver with the information being understood by the receiver. कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है सेंडर के द्वारा रिसीवर के लिए इंफॉर्मेशन के साथ कि वो जो जानकारी दी गई है वो समझ जाए। सेंडर जो जानकारी भेज रहा है वो रिसीवर की समझ में आ जाए। कम्युनिकेशन प्लेज की रोल इन द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर। डायरेक्टिंग एबिलिटीज ऑफ मैनेजर मेनली डिपेंड्स अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। एक मैनेजर को अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। उसकी सक्सेस कम्युनिकेशन स्किल पर ही डिपेंड होती है। दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एम्फसाइज on improving communication skill of manager as well as employees. Communication is important for the directing function because all other element of directing become possible only when there is adequate communication. कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन की सफलता पर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डायरेक्टिंग का, क्योंकि डायरेक्टिंग के सारे एलिमेंट तभी सफल होंगे जब पर्याप्त कम्युनिकेशन होगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने एलिमेंट होते हैं? तो सेंडर who conveys his thought or ideas, मैसेज सेंडर यानी मैसेज भेजने वाला, और मैसेज जो भेजा गया है, मैसेज होता है आइडियाज़, फीलिंग, सजेशंस, ऑर्डर एट्सेट्रा। इनकोडिंग converting the message into communication symbols such as words, picture etc. तो इनकोड करेंगे। मीडिया होगा। मीडिया मीन्स जिस पाथ या चैनल के थ्रू आप इनकोडेड मैसेज को सेंड करेंगे। तो मीडिया इज अ पाथ और चैनल थ्रू विच encoded message is transmitted to receiver. For example, face-to-face phone call, internet, etc. Decoding. Decoding क्या है? Encoded message को decode करना, यानी converting encoded symbol of the sender by the receiver. Receiver who receives communication of the sender, and then feedback. Feedback, all those action of receiver indicating that he has received and understood the message of the sender. तो जब मैसेज मिल जाता है उसके बाद जो एक्शन रिएक्शन होता है वो फीडबैक होती है। नॉइस, सम abstractions और hindrances to communication, जो व्यवधान आते हैं उन्हें नॉइस कहा जाता है। लाइक पुअर टेलीफोन कनेक्शन, inactive receiver. Importance of communication. Why is communication important?
फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। यदि प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है तो उससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है। बिटवीन इंटर रिलेटेड डिपेंडेंट्स एंड सेक्शन, thus creating a unity of purpose and action। प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो यूनिटी ऑफ एक्शन रहेगा। प्रोवाइड डाटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए डाटा मिल जाता है जिस आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं। When information is effectively and efficiently communicated to management, the data become base for decision making, increases managerial efficiency, every individual in the organization is assigned a job or task. The employee must know clearly who has to report to whom, what part of total job they are expected to perform, and what are their decisions. They clearly comes only with a smooth flow of communication। जब कम्युनिकेशन का स्मूथ फ्लो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तभी लोगों को पता होगा कि वो किसके प्रति जवाबदार हैं, क्या उनका काम है, कैसे उनको काम करना है। Which keeps the organization at work with efficiency। तभी एफिशिएंसी से काम हो सकता है। Promotes cooperation and industrial peace। कम्युनिकेशन यदि प्रॉपर ढंग से होता है तो इट्स प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। The two-way communication promote cooperation and mutual understanding between the management and worker and brings peace in the organization। सूचनाओं का आदान प्रदान यदि सही ढंग से हो रहा है तो उससे कॉपरेशन बना रहता है और शांति भी बनी रहती है। Establishes effective leadership। Effective communication helps to influence subordinates, while influencing a leader should possess good communication skill। यदि अच्छी तरह से कम्युनिकेशन स्किल आती है तो लीडरशिप इफेक्टिव होगी। प्रॉपर लीडरशिप के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है। If there is two ways information flow between the superior and the subordinate, then there will be positive reaction of employees। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा कम्युनिकेशन टू वेज होना चाहिए, तभी एम्प्लॉइज़ का पॉजिटिव रिएक्शन होगा। Communication taking place within an organization may be broadly classified under two categories, formal and informal communication। So what is the difference between formal and informal communication? Formal communication is also known as official communication, following the chain of command, whereas informal communication take place outside the official channel। इसका कोई चैनल नहीं होता इनफॉर्मल का। इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक, फॉर्मल मीन्स औपचारिक। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कंसर्न विद ऑफिशियल मैटर। जब ऑफिशियल मैटर होंगे तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बी वर्क रिलेटेड टू अदर मैटर्स। ऑफिशियल मैटर्स के अलावा दूसरे मैटर्स जो होंगे उसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चलेगा।
Formal communication may be written or oral, but generally recorded and filed. Whereas informal communication arises out of social interaction. सामाजिक सद्भाव के द्वारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जन्म होता है। डायरेक्शन वर्टिकल हो सकता है, यानी ऊपर से नीचे, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सेंडिंग नोटिस, पासिंग गाइडलाइंस, आस्किंग देम टू कंप्लीट असाइन्ड वर्क। वेयरएज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप बाइन होता है। ग्रेप बाइन क्या होता है? ग्रेप बाइन मीन्स उसका ओरिजिन और एंड आप ट्रेस नहीं कर सकते। Origin and direction of flow is not easily located. Cuts across scholar chain. Scholar chain को भी फॉलो नहीं करता है। Spread of rumors is possible as it is not easy to fix responsibility. किसने क्या कहा ये हम उत्तरदायित्व नहीं ठहरा सकते, किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, इसलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर फिक्स करना मुश्किल है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होगा, जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। हॉरिजॉन्टल बिटवीन डिपार्टमेंट्स होगा, अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट डिज़ाइन एट्सेट्रा। पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क आर सिंगल चेन, व्हील चेन, सर्कुलर फ्री फ्लो एंड इन्वर्टेड वी। ये आपके प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप हैं, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिंगल स्टैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, क्लस्टर्स, ये इसके टाइप हैं। तो डिफरेंस आपको समझा ही दिया है और आप पढ़ लीजिएगा। मीनिंग, चैनल, स्पीड, नेचर, एक्सप्रेशंस। Now come on, barriers to effective communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, रुकावटें? सेमेंटिक बैरियर्स पहला। सेमेंटिक बैरियर्स कंसर्न विद प्रॉब्लम एंड अब्स्ट्रैक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग और डिकोडिंग। मैसेज को इनकोड करना और डिकोड करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सेमेंटिक बैरियर्स होते हैं। Encoding or decoding of message into words or impressions, semantic barriers are as follows. Badly expressed message. कभी कभी मैसेज को भेजने का ढंग खराब होता है। Sometimes intended meaning may not be conveyed. That is badly expressed message. Words with different meaning. यदि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो इट कन्फ्यूजेज द रिसीवर, रिसीवर को कन्फ्यूज हो जाता है। फॉल्टी ट्रांसमिशन, may transfer wrong message, unclarified assumption, different interpretation may result into confusion. भेजा कुछ और है, अर्थ कुछ और लगा लिया। टेक्निकल जार्गन,
हर एक फील्ड के अपने अलग शब्द होते हैं, वो शब्द सभी को मालूम हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये टेक्निकल जार्गन होता है। टेक्निकल वर्ड्स may not be understood by the workers। सेकंड बैरियर आता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। ये व्यक्ति के अपने खुद के होते हैं। प्रीमैच्योर एवेल्युएशन, जजमेंट बिफोर लिसनिंग लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। सुना है नहीं और अर्थ को पहले से ग्रहण कर लिया। प्रीमैच्योर एवेल्युएशन। Lack of attention, poor listening may also disappoint the employees। जो बात कही जा रही है उसको ध्यान से न सुनना, कुछ सुनना कुछ ना सुनना। Loss of transmission and poor retention। When oral communication passes through various levels, it destroys the structure of the message or leads to transmission of inaccurate message। जब ओरल कम्युनिकेशन होता है तो चलते चलते उसका अर्थ या भाव बदल जाते हैं। एक ने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे से कही, तीसरे ने चौथे से कही, और वो बात कुछ की कुछ हो जाती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रस्ट। इफ द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर। यदि एक दूसरे को भरोसा नहीं है कि जो बात कही जा रही है वो सत्य है, दे कैन नॉट बी अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस। तो जो मैसेज दिया जाना था वो अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगा। Now organizational barriers which are related to organizational structure. Number 1, if organizational policy does not support free flow of information, it creates problem। यदि संस्था की पॉलिसी ही ऐसी है जिसमें फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है तो इससे प्रॉब्लम जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन। रिजल्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन may leads to रेड टेपिज्म एंड डिले ऑफ एक्शन। रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही यानी बॉसगिरी। तो यदि रिजिड रूल्स और रेगुलेशन होंगे तो उससे डिले ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा। जो ऊपर से आदेश आएगा वो मानना है, जो आप कहेंगे वो सुनी नहीं जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन डिले एंड डिटोरिएशन। यदि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो उससे भी डिले ऑफ एक्शन होता है और मैसेज डिस्ट्रॉयड होता है। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के अपने होंगे। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी may withhold or suppress a particular communication। एक डर जो एम्प्लॉइज़ के अंदर रहता है, सबऑर्डिनेट्स के अंदर होता है, कौन अथॉरिटी को चैलेंज करे, उससे भी प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में गैप आता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। यदि विश्वास ही नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, दैट इज़ फियर ऑफ पनिशमेंट,
डिमोशन एटसेट्रा। कहीं ऐसा ना हो हमको कोई सज़ा दे दी जाए, हमको डिमोट कर दिया जाए। ये भी कम्युनिकेशन में एक गैप का काम करता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव स्टॉप्स द सबऑर्डिनेट्स टू ऑफर यूजफुल सजेशंस। यदि आप अपने एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर इंसेंटिव नहीं दे पा रहे हैं तो भी एम्प्लॉइज़ अच्छा करने से पीछे हटते हैं और अपने यूज़फुल सजेशन नहीं देते। नाउ वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। बैरियर्स आपने पढ़ लिए, रोड़े, रुकावटें जो हैं इनको दूर करने के लिए तरीके। क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। जब भी आप कम्युनिकेशन करने बैठें तो सबसे पहले अपने आइडियाज़ को, जिनको आप देने वाले हैं, क्लियर कर दें। क्या आप कहने जा रहे हैं, यह बात आप अपने सबऑर्डिनेट को क्लियर कट बता दें। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात कहें। अननेसेसरी टॉक ना करें। अननेसेसरी टॉक करने से कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय होता है। तो पर्याप्त मात्रा में ही कम्युनिकेट करना चाहिए। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन की बात रखें तो कम्युनिकेशन करने से पहले, यानी अपनी बात को रखने के पहले, दूसरों से भी उस मैसेज के ऊपर कंसल्ट कर लें। आप क्या कहने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई बुराई तो नहीं है। ये बात अपने सुपीरियर से आप पहले तय कर लें, चेक करा लें। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। जो मैसेज आप देने जा रहे हैं उसमें असंसदीय भाषा तो नहीं है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। आपकी बोलते वक्त ट्यून क्या होगी इस पर ध्यान रखना चाहिए, और मैसेज का कंटेंट क्या है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। एश्योर प्रॉपर फीडबैक। जब आप मैसेज कर चुकें तो रिवर्स में आपके सबऑर्डिनेट्स का क्या रिएक्शन है इसको भी एश्योर करें। जो फीडबैक आपके सबऑर्डिनेट दे रहे हैं उसको समझें, क्योंकि फीडबैक प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर सजेशन एंड क्रिटिसिज्म। फॉलो अप कम्युनिकेशन। चेक करें जो कम्युनिकेशन या जो मैसेज दिया गया है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं। फॉलो अप कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिमूव हर्डल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजर टू सबऑर्डिनेट। उस फॉलो अप से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि जो मैसेज दिया गया है वह वैसे ही समझा गया है जिस मैनर में आप उसे समझाना चाहते थे। कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है। बी अ गुड लिसनर। सुनना भी सीखें, हमेशा कहना ही जारी ना रखें। शायद इसलिए ईश्वर ने भी हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं कि हम सुने ज़्यादा और बोलें कम।
तो बी अ गुड लिसनर, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट को यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या जा रही है, तो उसको सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आके हमारा ये डायरेक्टिंग चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आंसर भी हैं, इनको अपनी नोटवर्क कॉपी में नोट कर लें। शॉर्ट आंसर भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक कॉपी में नोट करें और तैयार करें। डायरेक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के आते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिएगा। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हैं 4 और 5 मार्क्स के लिए। एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन भी हैं। जिन्हें आप केस स्टडी भी कह सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर केस प्रॉब्लम अलग से भी दिए हैं। आपको केस स्टडीज़ भी बोर्ड में आती हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर और क्वेश्चन दोनों आप अपनी नोटबुक कॉपी में प्रॉपरली नोट कर लें। ओके, थैंक यू।